देखा तो पूछा आपसे कुछ भी बोल रहे, कुछ भी आपको सुनाई दिया ना कि ना कोई पूछा कि तेरा ये आवाज सही है। पहला क्वेश्चन था X and company, a registered supplier of Meghalaya, wants to opt for composition levy. The turnover limit is मेघालयातले B 75 लाख. तो वन का आंसर हो गया बी. प्लीज एजेंट कॉपी में बस वन का आंसर बी लिख लेना. हाँ, GST is not payable by recipient of service in the following cases: service provided by way of sponsorship, service provided by way of sponsorship to ABC Limited. इसमें तो भैया रेसिपिएंट को क्या देना है, रेसिपिएंट को देना है. सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ लेट्स लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा, मुझे लगता है इसमें RCM नहीं लगेगा. सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ सर्विस स्पीड पोस्ट, इसमें RCM नहीं लगेगा. सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू SNSP, इस पे RCM लगेगा. तो फाइनली आंसर हो गया 2. मेरा आप लोग को ये एडवाइस है कि आप पूरा ABCD चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही डिसीजन लीजिए. तो इसमें पूछा जा रहा है 1 and 2, 2 and 1 and 4, 2 and 3 and 2 and 4. तो भैया इस पे तो RCM नहीं लगता, नो RCM. सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू ABC लिमिटेड, इस पे RCM लगता है. सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें RCM नहीं लगता, पहले बोला था. तो आंसर इज 2 and 3. 2 and 3, 2 and 3 क्या नजर आ रहा है? C. तो 2 का आंसर हो गया C. आई होप आपका राइट हुआ होगा. कैन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टेन फॉर कंपोजिशन, जो पीछे जो बाजू वाले का छापे ना उनको कुछ ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो अपने मन से किया उनको सब ध्यान रहता है कि हम क्या किया था. नहीं, कल एग्जाम दिया, आज ध्यान नहीं रह रहा है, समझा तो रहे. कैन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टेन फॉर कंपोजिशन स्कीम collect GST on its outward supply? Yes in all cases. Yes only on such goods as may be notified by the central government. Yes only on such services as may be notified by central government. Answer is no. तो 3 का आंसर हो गया D. In case of GTA, service tax is to be paid under forward charge if the rate of GST is 12%. Seems to be correct. GST is payable at the rate 5% and a factory registered under the Factories Act. ये तो RCM में जाता है. An unregistered individual and customer is recipient of GTA, ये तो exemption में जाता है. A registered casual taxpayer is the recipient, ये भी RCM में जाता है. तो आंसर इज ओनली A. 4 का आंसर A. Which of the following person is not eligible for composition levy under subsection 1 and 2? Which of the following person is not eligible for composition levy under subsection 1 and 2 of the CGST Act, even though there is aggregate turnover does not exceed 1.5 CR in the preceding financial year in Uttar Pradesh? चलो ठीक है. A person supplying restaurant service, ये तो 1 में eligible है. A person supplying restaurant service and earning bank interest, ये भी eligible है. A person trading in ice cream, ये भी eligible है. A person supplying service of repairing of electronic item, ये भैया 1.5 करोड़ वाला eligible नहीं है. तो आंसर इज D. 5 का आंसर हो गया D. ठीक है. सिक्स नंबर है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, आई रिपीट, सब सही जा रहा है? हाँ चलो. द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर. ना ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये भी एक पॉइंट है. डेट ऑफ इनवॉइस, ये भी एक पॉइंट है. डेट ऑफ A and B, अर्लियर ऑफ A and B. तो आंसर इज D. डेट ऑफ इनवॉइस तो पॉइंट ही नहीं था. Which of the, तो 6 का हो गया D. Which of the following service does not fall under the reverse charge mechanism as contained under 9(3) of the CGST Act? Service supplied by arbitral tribunal to business entity.
Which of the following service does not fall under the reverse charge provision as contained in 9.3? Service supplied by arbitral tribunal to business entity, yes. Sponsorship service to the any partnership firm, yes. Sponsorship provided to any body to operate, yes. Service of renting of motor vehicle for passenger provided to recipient other than body to operate. ये body to operate होता तो ये भी RCM में जाता, other than body to operate इसलिए RCM में नहीं है. Answer is 7D. Alcoholic liquor for human consumption is subject to state excise, yes. Well, VAT, yes. Both A and B, yes. GST, no. And answer is C, both A and B. Which of the following is not considered as goods? So 10 paisa coin having sale value 100, yes. Share of unlisted company, no. Lottery ticket, yes. तो आंसर हो गया 1 and 3. क्या पूछा जाए गुड्स नहीं माना जाएगा तो भैया 2 2 2 2 सिर्फ 2. 10 पैसे coin having sale value of 100 is a goods. Lottery ticket is a goods. तो आंसर इज ओनली 2. तो 9th आंसर हो गया बी. Which of the following is not eligible for opt-in composition scheme? 10(1) में भी नहीं और 10(2) में भी नहीं. Messrs ABC, a firm selling garment in Ahmedabad, having annual turnover of 78 lakh, eligible. A startup company operating restaurant in Delhi, turnover 98 lakh, eligible. A courier company operating solely in the Mumbai, turnover 90 lakh, not eligible. A trader selling grocery item in Odisha, having annual turnover 95 lakh. तो आंसर हो गया सी. 10 का आंसर सी. आई होप सब राइट जा रहा आपका. बहुत आसान था यार ये तो. C and Company, a registered supplier in Delhi, opted for composition levy under subsection 1 and 2 of the section 10. It sold goods in the 4th quarter of a financial year of rupees 15 lakh excluding GST. The applicability of GST rate on these goods is 12%. C and Company purchased goods from Ramesh and Company, registered in Delhi, for 9,55,000, on which Ramesh and Company had charged CGST 57,300 and SGST 57,300. C and Company had also purchased goods from E and Company, registered in Haryana, for 2,46,000, on which E and Company had charged IGST 29,520. GST liability of C and Company for the 4th quarter of the financial year is. क्या नचाया रे, मतलब कोई काम की बात नहीं है. हाँ, ये वो कंपोजिशन स्कीम में है और उसका 4th क्वार्टर का टर्नओवर यदि 15 लाख है तो 15 लाख पे 1%, 15,000 जीएसटी देना है. 7,500 CGST, 7,500 SGST. ए 12 में आते हैं. ये सब एग्जाम्स के सम्स है, इसमें मेरा कोई बायसनेस नहीं है. तो आपने देखा ये लोग आपका टाइम किलर बनाते हैं, टाइम किलर. लंबा सम्स दे दिए तो बात ना बेबात, पढ़ने में टाइम जा रही है. एक्सेस जबकि ये सब छोटे हैं, आजकल इससे भी अच्छे आएंगे, अब और इससे अच्छे आएंगे. एक्सेस आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, परचेज गुड्स फ्रॉम PC trader registered in UP. Goods are exempt from GST. Assets arrange the transport of these goods from a GTA, which charge a freight of 9,000 for the same. GST is payable at the rate 5% on such GTA. Which of the following statement is correct? पहले बताओ GTA किसने हायर किया? Assets arrange the transport of these goods from a GTA. इसी ने परचेज किया था, रिसिपिएंट ने हायर किया था. ठीक है. जीएसटी ऑफ रुपीज 450 इज पेबल बाई एक्सेस ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस इज अ कंपोजिट सप्लाई and wherein supply of goods is the principal and the same principal supply is an exempt, therefore no tax is payable on freight. Seems to be good. Since exempt goods are being transported, service provided by GTA for transporting the goods is also exempt. Bakwas. GST of rupees 450 is payable by the GTA. And answer is GTA तभी GST देता है जब रेट GST का 12% हो जाए. ठीक है. और कुछ है ही नहीं, मतलब आंसर एब्सोल्युटली ए है.
भारत आंसर ए है। किसी के मन में डाउट है तो पूछते जाना। हाँ, द पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन द जीएसटी। द पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई फ्रॉम मध्य प्रदेश in company to get registration under GST if his all India based turnover is 20 lakh, if his all India based turnover exceed 10 lakh, irrespective of the amount of aggregate turnover, in case of making interstate supply of taxable goods, irrespective of the amount of aggregate turnover in the financial year. So seems to be D, मतलब C और D जैसा लग रहा था। यदि पूरा नहीं पढ़ता ना तो फंस जाते हैं। And answer is D. ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई अगर एग्जाम्प्ट है तो उसका मतलब बाकी सब भी एग्जाम्प्ट है, उसका रिलेशन में देखते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला मेन सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो उसकी सारी सप्लाई एग्जाम्प्ट है। यदि कोई कंपोजिट सप्लाई है और कंपोजिट सप्लाई में मेन सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो साथ वाली सप्लाई भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड वो कंपोजिट सप्लाई हो। एग्जैक्टली वो कंपोजिट सप्लाई है, वो कंपोजिट सप्लाई है। खैर वो यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा। मिस्टर एच अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, which of the following statement is correct? Mr. H is not required to take registration। भाई साहब आप जब हैंडीक्राफ्ट का ट्रांजेक्शंस नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। Mr. H is required to get registration under GST if the aggregate turnover 20 lakh, बकवास। Mr. H is required to get registration 40 lakh, बकवास। Mr. H has to take compulsory registration under GST irrespective of threshold से ले। तो जितने भी कैजुअल टैक्स पेयर है उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है irrespective of turnover. The registration certificate granted to non-resident taxable person is valid for from the effective date of registration or period specified in registration application whichever is earlier. वो NRTP का तो भैया 90 दिन के लिए वैलिड है। 16 नंबर, how the aggregate turnover is calculated for determining threshold limit? Aggregate value of all taxable supply excluding the value of inward supply in which RCM is applicable. Exempt supply, export of goods and interstate supply of person having same PAN computed on all India basis. ये तो right लग रहा भैया। Aggregate value of all taxable supply excluding the value of inward supply on which tax is payable under RCM. Exempt supply, export of goods or services and interstate supply of a person is computed for such state separately. Aggregate value of all taxable intra-state supply, export of goods, ये तो ऐसे ही होता है, इंट्रा सप्लाई क्यों बोल दिया। Aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which RCM is applicable. Exempted supply, export of goods or services and interstate supply of a person having the same PAN computing on all India basis and excluding tax if any। क्या यार, यदि पूरा नहीं पढ़ते तो शायद ए में आंसर लेके आ जाता मैं तो। एंड आंसर इज डी। With how many days a person should apply for registration? 30 days from date he becomes liable to be registered. ऐसा समझते हो जितना शॉर्ट ड्यूरेशन ये नहीं बनता, ये एट ए ग्लांस 30 सेकंड में हो जाता है, ऐसा नहीं बनता। अब तो पूरा पढ़वाता है, लेकिन जो भी है ये अभी इन दिनों में ही आए हुए हैं। Kalim and Associates made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. Its application for cancellation of registration was approved on 14 September. In the given case, Kalim and Associate is required to file final return on or before 30th December, 90 days, 3 months. Not required to file final return. Required to file final return on or before 3 महीना 14 December. Required to file final return on or before 14 December. अरे जालिम, ये क्या कहाँ मार दिया यार, हाँ कहाँ मार दिया। आंसर तो 30 दिसंबर ही है, फिर भी देखना पड़ेगा। Required to file final return on or before 13 December.
हाँ ये फालतू यार, 1 दिन के लिए जान मार दिया यार। 3 मंथ है, 90 डेज वाला होता तब तो सीधा 13 दिसंबर पे आरती देता। वॉज अप्रूव्ड ऑन 14 सितंबर, तो 14 सितंबर से 3 महीना। आंसर सही नहीं दे रहा हूँ। भैया मेरा आंसर तो 14 दिसंबर जा रहा है। 3 महीना है, 90 दिन नहीं है, यही वो लोग पूछना चाह रहे हैं वहां पे। तो जिस बच्चे के दिमाग में 90 दिन रहेगा वो 13 सितंबर लेते आ 13 दिसंबर लेते आ जाएगा। लेकिन फाइनल रिटर्न की टाइम लिमिट 3 महीने नहीं है, सॉरी 90 दिन नहीं है, 3 महीने है। और 3 महीने यदि आपको 14 सितंबर का आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो वहां से 3 महीने 14 दिसंबर ही आता है। हाँ तो फाइनली 14 दिसंबर। एक बार दोस्त ये तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, ये तो रिटर्न में नहीं ना, रिटर्न में भी हो सकता है। आप बोलना नहीं, अब देखो नहीं नहीं, मैं कोई सबूत वबूत की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं तो हाल ही फाइनल रिटर्न में बच्चों को एक बात क्लियर करना है कि 90 डेज है कि 3 मंथ्स है। 100%। अगर रॉन्ग होगा सर मुझे भी पता है, कोई डाउट नहीं है इसमें मुझे। ये बात क्या होता है, नजर से देख लेते हैं ना बच्चे। और एक बात देख लेते हैं। If a registered person registration, then he shall furnish a final return in form GSTR 10 within 3 months of the date of cancellation or date of cancellation order, whichever is earlier. तो डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर से 3 महीने के अंदर आपको अपना फाइनल रिटर्न भरना है। तो ये 14 दिसंबर आंसर जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो मेरा आंसर है इसमें 14 दिसंबर, लेकिन ये बच्चों पे जाती है, खुंडे है ये। XY Xylo company has 3 branches in Jalandhar, Amritsar, Ludhiana. In the state of Punjab, Amritsar, Ludhiana, branches are engaged in supply of garment and Jalandhar branch engaged in supply of shoe. Which of the following options are eligible? Are legally available for registration? Xylo and company can obtain single registration for Punjab, declaring any one of the branches as principal place of business and other 2 branches as additional place of business. तो Jalandhar, Amritsar, Ludhiana. Xylo and company can operate separate registration. Xylo and company can obtain one GST registration for shoe business and another GST registration for garment business. तो भैया ये ऑप्शन क्या दिया, 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं भैया, इधर 1 2 3 नहीं, ये तो नहीं, इधर 1 और 2 मतलब एनी वन ऑफ द ब्रांच एज प्रिंसिपल प्लेस, तो 1 तो है ही, 1 तो हर में कॉमन है। 2 में क्या, कैन ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द 3 ब्रांचेज, ये भी है ही, 2 भी है ही। Xylo company can obtain 1 GST registration for shoe business, 1 2 3 seems to be 1 2 3, और 1 और 2 तो दतला नहीं है, 2 और 3 तो दतला नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो पंजाब का जो सप्लायर है वो अपनी 3 ब्रांचेस का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, हाँ, और चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, और 2 कपड़े का एक और उसका एक ऐसे भी ले सकता है। तो तीनों ही चॉइस उसके पास है। तो आंसर इज बी, नाइसली डिजाइंड। 90 नंबर का आंसर हो गया बी। 20, what is the validity of 1 registration certificate? Wow, एक का 1 रुपया validity till it is cancelled. 21,
Within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made? तो भैया 30 days. Rama Limited has provided following information for the month of September. Intrastate outward supply 8 lakh, interstate exempted outward supply 5 lakh, turnover of export goods 10 lakh, payment made for availing GTA service 80,000. Calculate the aggregate turnover. तो भैया 8 5 13 10 23 लाख. 23rd का आंसर हो गया सी, नहीं 22 का आंसर हो गया सी. 23rd में आ जाए. P Limited has its registered office under Companies Act in the state of Maharashtra, from where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Telangana for storing said goods. What will be the place of business of P Limited? Telangana, Maharashtra, both A and B. Yes. C. 23rd का आंसर भी हो गया सी. Which of the following statement are correct? साथ में हो. Revocation of cancellation of registration under GST shall be deemed to be revocation of cancellation under SGST. True. Cancellation of registration under CGST, SGST shall deemed to be cancellation under true. Revocation of cancellation of registration under CGST shall not be deemed to be revocation of cancellation of registration. False. Cancellation of registration under CGST shall not be deemed. False. तो भैया आंसर हो गया 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. टाइम किलिंग, कुछ सेंस नहीं था, बकवास, खाली टाइम बर्बाद करने के लिए दे दिया. विच ये साली उससे नहीं होगा जो पढ़ाई नहीं है चैप्टर, अदरवाइज हो ही जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? अभी बता देते हैं. पर्सन्स exclusively engaged in making intra-state supply, tax on which is to be paid by the recipient on RCM. Person exclusively engaged in making intra-state supplies. क्या वर्ड है? Which of the following person is required to take compulsory registration? अच्छा, आप वो सप्लाई करो जिस पर आरसीएम जीएसटी देगा, मतलब रेसिपिएंट जीएसटी देगा, तो मैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू ₹20 लाख, नो, क्योंकि ये सर्विस है. पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विस थ्रू इको other than supplies specified under section 9(5) with aggregate turnover up to 20 lakh. Person who made taxable supply of goods or services both on behalf of other taxable person, whether as agent or otherwise. सी और डी में आंसर्स है. सी और डी में आंसर सर, ए तो नहीं है. एजेंट को रजिस्ट्रेशन कर. पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ, एजेंट को तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ना. एजेंट को तो रजिस्ट्रेशन चाहिए. आंसर इज मेरे हिसाब से डी. Persons making supply of service through an eco other than supply specified under section 9(5) of CGST है. इको यदि टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो तथ्य, ठीक है ना. डिस्कशन, हमारे कुछ बच्चे इस टॉपिक को पर्सनली देखना चाहते हैं, उन्हें पर्सनली दिखा देते हैं. किताब में नहीं, गूगल में निकालोगे. तुम सर को पढ़ा कर रहे हो.
सरकार बोल रही है, हमारी नहीं है। इंटरस्टेट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आरसीएम एग्रीगेटर, एनआरटीपी, टीडीएस, वो अलग से दिया। देख लेते ना भाई साहब. Person who supplies goods or services or both other than supplies specified in section 9(5) through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source. तो ये पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट यहां तक तो वैलिड है. उसके बाद ये लाइन वहां पे मिसिंग था, इसलिए दिमाग में था कि टीसीएस जिसका करता वहां पे तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है. लेकिन एजेंट वाला पॉइंट तुम देख ही रहा ना, एजेंट वाला पॉइंट आने दे, मैं तुझे दिखा देता हूँ एजेंट वाला पॉइंट. Persons who make taxable supply of goods or service or both on behalf of other taxable person, whether as an agent or otherwise. ये लैंग्वेज एज इट इज छाप दिया, और इसमें क्या ना, ये लैंग्वेज में ये मार दिया. कौन सा लैंग्वेज? ये हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस वाला पॉइंट, ये लैंग्वेज हटा दिया. तो सी और डी में घनघोर कंपटीशन था, लेकिन सी में ये वर्ड मिसिंग था, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, इसलिए मेरा आंसर डी में चला गया. चाहिए सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो देगा, इनको तो देंगे। अदर देन 9(5) बोला, अदर देन 9(5) बोला, मैंने क्या कर, नहीं तो कंपटीशन किस बात का था दादा, क्लियर. मतलब सेम पॉइंट दे दिया ना, और कॉपी पेस्ट मारा है, 24 से कॉपी पेस्ट मारा, तो एजेंट वाला तो एज इट इज डाल दिया. एक मिनट दादा, एजेंट वाला तो एज इट इज डाल दिया, लेकिन इको वाले पॉइंट में ये हटा दिया, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स. इसलिए सी और डी में बहुत जोर का कंपटीशन हुआ और फाइनली जीत दिया डी. बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज था. हम क्लोज वाले में तुमको दिखाना चाह रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में रिटेन वो रहे, रिटेन रहे चीजें. चलो भैया, माइंड रिलैक्स इन 30 days. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल इज रिक्वायर्ड टू, सॉरी बाय मिस्टेक 5 दिन, सॉरी सर, वो 30 days रजिस्ट्रेशन देखा है, एनआरटीपी देखा है नहीं. हाँ, मैं समझ सकता हूँ. माइंड रिलैक्सिंग नहीं था, माइंड ज्यादा ही रिलैक्स हो गया. एनआरटीपी देखा नहीं, खाली रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन देख के विद इन 30 days मार दिया. तो एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो भैया प्लीज रेक्टिफाई करना, 26 का आंसर सी होगा. हाँ, 27 बस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्स. मैं कोई रिलैक्स सुनना ही नहीं चाहता, मैं पूरा पढ़ूंगा. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी विल बी वैलिड फॉर अर्लियर ऑफ ए और बी, अर्लियर ऑफ ए और बी. 27 का सी. Mr. Ram is a jeweler registered under GST in the Mumbai, wants to sell his jewelry in the trade expo held in Delhi. Which of the following statement is correct? He need to get registration in Delhi as casual taxable person. सही है. He need to pay, which of the statement is false? He need to pay advance tax on estimated tax liability. सही है. He need to mandatorily have a place of business in Delhi. He need to mandatorily have a place of business in Delhi. ये false है. He need to file GST 1, GST 3. 28 का सी राइट आंसर हो गया, क्योंकि कैजुअल टैक्स पेयर वाला रजिस्ट्रेशन ले सकता है, दिल्ली में कोई परमानेंट प्लेस बिजनेस होना जरूरी नहीं है. प्रेम एंड सन्स had taken GST registration on 1st January but failed to furnish GST return for next 6 months. Owing to this, the proper officer cancelled its registration on 25th July and served the order for cancellation on 31st July. Now the Prem and Sons wants to revoke the cancellation of registration. Prem and Sons can file an application for revocation on or before. तो भैया 30 दिन है टाइम लिमिट, और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ 31st जुलाई से 30 days, 30 अगस्त. अगस्त 29 का आंसर हो गया ए. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी? टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस,
exempt है. Supply of farm labor exempt. Warehousing of agricultural produce. And answer is 1, 2, 3. D. Mr. Narayan Goel has booked a room or rent in Sunshine Hotel for the purpose of lodging on 10th August. GST is not payable by Mr. Narayan Goel. In the case, value of supply of the same is सिर्फ A. ये पॉइंट, ये क्वेश्चन ही पुराना हो गया, अब तो सब पे लगेगा. 30 सब पे लगेगा. हाँ ठीक है. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST by road, na. Inland waterways, yes. Goods transport agency, na. Courier agency, na. Inland waterway, 2. Service of transport are exempt from GST. रोड में GTA से टैक्सेबल है, कुरियर से टैक्सेबल है, तो ठीक है. इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट है. चल 1 तो नहीं होगा. अरे बाबा तुम A की बात कर रहे थे, 1 की बात कर रहे. वेट. हाँ, तो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. रोड, इनलैंड वाटरवे. देखो डी तो आंसर एकदम बकवास है, कोई सेंस ही नहीं है. रोड एक्सेप्ट GTA एंड कुरियर एजेंसी एंड 2. आंसर डी. है तो 2 आंसर. तो वही तो लिखा 1 एक्सेप्ट 3, 4 and 2. 3, 4 के बाद ब्रैकेट में कर दिया. अच्छा 1 and 2 एक्सेप्ट किए हो. 2 is exempt. इनलैंड वाटरवेज, तो 2 is exempt. और रोड से जाएगा GTA कुरियर को छोड़ के. एग्जैक्ट लैंग्वेज तो डाल दिया, तो भैया बेस्ट आंसर इज डी. हाँ, ये राइट होना डिफिकल्ट था. लैंग्वेज बड़ा क्लिष्ट था भाई. चीज आसान थी, लैंग्वेज घुमाती थी. आगे बात करें. ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. पल्सेज, मिलिट्री इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैगरी. तो भैया मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है इसका. ए में दिया 1 and 2, बी में है 1 and 3. नहीं 1 and 3 तो रॉन्ग आंसर है. 3 तो टैक्सेबल है. 2 and 4 मिलिट्री इक्विपमेंट एंड जैगरी. वो खोल ले भाई. And answer is pulses and electronic, pulses and military equipment. 1 and 2. काम मालूम क्या आया? काम आया वो भाषा. दाल, रोटी, चावल, दूध, नमक. उससे जैगरी आप लिए थे. हाँ उसमें जैगरी है, देख लेना. दाल, रोटी, चावल, दूध, नमक. तो दाल एग्जेम्प्टेड है और मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्टेड है. तो फाइनली सर आंसर क्या हुआ ये तो बताइए. ये सब मिला हुआ है. अच्छा तो ठीक है. आंसर हो गया 1 and 2 ए. 34 में जा रहे हैं. सर्विस बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग. अरे दाल, रोटी, दूध, चावल के बाद क्या बचता है? सर्विस बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ इज एग्जेम्प्ट. टी की वेयरहाउसिंग, जैगरी की वेयरहाउसिंग, बिटर लीव्स की वेयरहाउसिंग या प्रोसेस कैश्यू न्यू नट की वेयरहाउसिंग. तो इसमें ऑप्शंस देखे क्या क्या है. इज एग्जेम्प्ट, कौन सा एग्जेम्प्ट है? तो भैया देखो सी तो एग्जेम्प्ट नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो बकवास है. ये सी तो रॉन्ग आंसर है. 1 and 4 नहीं, ये तो रॉन्ग आंसर है. 1, 2, 3 and 4 नहीं, ये तो रॉन्ग आंसर है. तो टी, जैगरी, बेटल लीव्स, इन सब का आंसर इज डी. प्रोसेस है ना. हाँ प्रोसेस कर दिया ना आपको.
Question number 34 के बाद 35. Which of the following services are not exempt? Yoga camp conducted by charitable trust, exempt. Service provided by business correspondent to rural branch of bank with respect to saving bank account, exempt. Service provided by cord blood bank, exempt. Service provided by commentator to a recognized sports body. सिद्धू को देखते तो मैं एग्जाम्शन हटा देता हूं, पसंद ही नहीं आदमी. Number 36. An exempt supply includes supply of goods or services or both which attracts nil rate of tax, true. Non-taxable supply, true. Supply of goods or services or both which are, तो भैया 1, 2 and 3 ये ऐसे आओ ना भैया, हम लोग फटाफट कर देंगे. Which of the following services are exempt from GST? Service by an artist by way of performance in classical art form of painting, sculpture, making, etc. with consideration thereof not exceeding 1.5 lakh. Geo. Services by an artist by way of performance in the modern art form of music, dance, theatre, consideration does not exceed 1.5 lakh. Thereof not exceeding. Services by an artist by way of performance in folk or classical art form of music, dance, theatre with consideration exceeding 1 point. मतलब चौथा भी पढ़वा ही रही है, मानेगा नहीं. Service by an artist by way of performance in folk or classical art form of music, dance, theatre with consideration thereof not exceeding 1 point. मतलब absolute answer है, टाइम खाया. हाँ. Service by way of admission to म्यूजियम, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रिकॉग्नाइज, नॉट एग्जाम. तो भैया ये नॉट एग्जाम, ये नॉट एग्जाम. बात ये तो एग्जाम है ही. वेयर हाउसिंग इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी. राइस का एग्जाम, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जाम, ज्वेलरी एग्जाम, कॉफी एग्जाम. भैया 39 का आंसर हो गया ए. ठीक है. Which of the following services are exempt from GST? Which of the following services are exempt from GST? पूछो. Admission to a circus entry ticket cost 550. Exempt. Circus taxable. Interest charge and outstanding credit card balance taxable. Service by an organizer to any person in respect of business exhibition held in India taxable. Service by foreign diplomatic mission located in India. आंसर डी. तो भैया जी आंसर हो गया 40 का डी. तो एग्जाम्प्ट हो जाता. Which of the following is treated as exempted supply? Sale of liquor, exempted supply. Supply of healthcare service, exempted supply. Transmission of electricity by an electricity transmission utility, exempted supply. तो आंसर इज 1, 2 and 3. इसमें नहीं आता. तुमको तुम्हारे सर ने एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन सिखाई है, उसमें बोला हुआ एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई में दारू, पीसीडीएनए और शेड्यूल 3 है. इसलिए 1, 2, 3 इज द राइट आंसर, है ना. हाँ. विच ऑफ द कौन सा? अच्छा. Which of the following is a recognized system of medicine for the purpose of exemptions for healthcare service? Allopathic yes, Unani yes, Siddha yes. Good. Acupressure. वो सब exempted नहीं है, बाकी सब पूछना. Which of the following service is exempt under healthcare service provided by the clinical establishment, chemist shop in the hospital, selling medicines to public at large? Taxable. हो गया, पहले ही taxable हो गया. Food supplied from an outsourced canteen to inpatient as per diet prescribed by the hospital dietitian. भैया ये तो exempt है. Food supplied from an outdoor canteen in hospital to the visitors, ये तो taxable है. Advertisement service provided by the hospital to a pharmaceutical company. आपने क्या पूछा था? विच इज एग्जाम्प्ट. तो भैया ये एग्जाम्प्ट. मैं फिर से बोलूं, ABCD चारों पढ़ लेना.
लेकिन स्पीड पढ़नी थी तेज करो. इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ. इनपुट क्रेडिट इज, देखो ये होता ना कि ये देते हटा दो, ये देते हटा दो, वो पूरा सम पढ़ने के बाद. लेकिन सम पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वहां पे शॉर्टकट नहीं है. अब लास्ट में फंस गया तो आदमी वही करेगा जो कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन सम पूरा पढ़ना चाहिए. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन लेवी. हाँ. फ्री सैंपल यस. गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन यस. ये बकवास. कंपोजिशन लेवी में आईटीसी मिलता है, वही है. कंपोजिट सप्लाई अलग चीज होता है, कंपोजिट लेवी अलग चीज होता है. खुश है, अपने दोस्तों से ही खुश है. मेक इट क्लियर. दे दे एकदम बढ़िया से जवाब दे दे, तोड़ के जवाब दे. कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन स्कीम सेम चीज है, दोनों सेक्शन 10 में आता है. सच्ची. In which of the following situation recipient need to add the input tax credit availed by him to his output tax liability? ओहो, तो यदि 180 days में नहीं देता है तो आउटपुट is 180 days. If payment for supply and the forward charge is not paid to the supplier within 180 days from the date of invoice. हाँ, क्वेश्चन नंबर भैया देख लो ना, 45 का सी है, 45 का सी है, ध्यान दे रहे हो. If the goods are received in lots or installment, तो ITC can be availed on the last installment. भैया बी. For banking companies using input and input service partly for taxable supply and partly for exempted, which of the statement is true? तो ए और बी दो ऑप्शन है. बैंकिंग कंपनी कैन चूज टू एक्सरसाइज इधर ए और ये. भैया देखो ये शॉर्टकट मारा मैंने, ये मैंने शॉर्टकट मारा. A supplier takes deductions of depreciation on the GST component for the cost of capital goods. तो भैया ITC नहीं मिलेगा. ITC of motor vehicle used for making is allowed. Transport of goods yes. Transport yes. Yes. 1, 2 and 3. Mr. A has a tax invoice of services received by him. Its input tax credit is lost if ITC is not availed on or before 21 ये तो नहीं, 31 दिसंबर 20 नहीं, 21 युद्धम नहीं, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न. तो पुराने लॉ के अनुसार ये आंसर राइट है. भैया 50 सम कर दी हमने. लेट्स सी हमने कितना समय ले लिया. तो अभी तक हमने 50 सम कर लिए हैं और अभी तक हमने समय लिया 43 मिनट्स. बहुत अच्छा है नहीं, मतलब इस हिसाब से तो हम पौने 2 घंटे में हम कर देंगे इस हिसाब से. तो अच्छा, बड़ा सम लास्ट में आ रहा है. ठीक है, ठीक है. खुश होने में क्या अर्ज है. एक ब्रेक बनता है भैया, हम ब्रेक ले रहे हैं और क्या है, बैकबोन सीधा करना पड़ता है. आओ क्वेश्चन नंबर 51. इनपुट टैक्स क्रेडिट shall not be available in respect of goods used for personal consumption. नहीं मिलेगा. सही बोल रहे हो आप. मेंबरशिप ऑफ क्लब प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इंटरनल पॉलिसी. बकवास, नहीं मिलेगा. ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन ऑफ एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी. नहीं मिलेगा. तो भैया 1, 2 and 3 तीनों का नहीं मिलेगा. 51 का आंसर हो गया डी. मिस्टर रघु अवेल सर्विस ऑफ मिस्टर राजा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट मिलेगा. टैक्स ऑडिट एंड एनुअल फाइनल गुड. इनकम टैक्स रिटर्न गुड. इनकम टैक्स फाइनल ऑफ मिस्टर रघु's वाइफ. ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड द एप्लीकेबल ऑफ रेट ऑफ GST इज 18%. तो भैया इस 55 लाख पे 18% होता है 9,900 और 10,000 पे होता है 18, तो 11,700. The accountant of Mr. Raghu has put in the entire expenses of 70,000 plus GST in the books of account. Mr. Raghu is eligible to take the input tax credit.
प्लस जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो पूरे का मिल जाता। वो रघु की वाइफ थी इसलिए डिनाई हो गया। आंसर 11,700। 53। 53. Messrs. Vittal and Company are registered supplier under GST is dealing in supply of taxable goods in the state of Karnataka. The firm opted for composition scheme since April. Its turnover crossed 1.5 CR on 9th May and has opted for मतलब इतना जल्दी, हाँ 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कराया, 9 में तो 1.5 CR है, and has opted for withdrawal of composition scheme on the said date. Vittal and Company sent goods on 10th June to Suri and Company on sale or return basis. Suri and Company accepted the goods via its confirmation mail dated 15 December. ठीक है, 10 जून को माल भेजा था, 15 दिसंबर को उसने क्या किया, एक्सेप्टेड। ये तो 180 डेज वाला आएगा यहाँ पे, तो 6 महीने आएगा यहाँ पे। The firm has paid GST for various items during the month of August. It comprised the following: GST paid on input service intended to be used for personal purpose, भूल जा। GST on purchase of motor vehicle for business use, being a two-wheeler having engine capacity of 25 cc. इतना गंदा, इनको बोलो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैट में है मोटर बाइक का डेफिनेशन। अरे वो तो मैंने जबरदस्ती किसी दूसरे लॉ में घुसते निकाल के डाल दिया, इनके मैट में है वो। नहीं तो जुल्म है ना यार, बच्चे को मोटर बाइक की डेफिनेशन कहां से याद आएगी। तो जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड बीइंग द टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 सीसी। तो मुझे बताओ उसको क्या बोलेंगे, टू व्हीलर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मतलब आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर, तो भैया इसका तो मिल ही जाएगा। एंड जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन, नहीं मिलेगा। GST portion was included as a part of cost to claim computer, नहीं मिलेगा। During the May, Vittal and Company had reversed ITC of rupees 10,000 for non-making payment to vendors within the time specified under CGST Act. This pending payment was cleared in the month of August. Nice. Out of the purchase made and ITC availed during the earlier month, the following information is made available. Payment is due for number of days 165 days. उससे नहीं पाप का घड़ा खत्म नहीं होगा। Vittal and Company received accounting service from Raghu and Company, an associate enterprise located in Sri Lanka. Raghu and Company issued invoice for the service on 1st September, which was entered by the Vittal and Company in its books of accounts on 10th of October, but payment was made on 13th September. All the supply referred above is interest rate unless specified otherwise. Conditions applicable for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above based on the information provided. ठीक है भैया, 5 नंबर का समय तो इतना तो टाइम डिजर्व करता है ना, ये 5 नंबर का समय यार, ये थोड़ी है 5 पढ़ने में इतना ही टाइम लगता है। पूछो क्या क्या पूछ रहे, बोलो, हमने पढ़ लिया सब। बोल रहा है Vittal and Company need to furnish a statement containing details of stock of input held in furnished goods on the withdrawal of composition scheme by। तो जब आपका कंपोजिशन स्कीम हट जाता है तो आपको एक डिटेल तो भेजनी पड़ेगी ना कि मेरा कितना स्टॉक है, वो हमें कब तक भेजना है। तो भैया क्या है, कब हमारा हुआ टर्नओवर क्रॉस 1.5 CR, तो 1.5 CR तो 9 मई को एक्सीड किया, तो उस दिन मेरा कितना स्टॉक में भेजना है। Vittal and Company need to furnish containing details of stock input held in furnished goods on the withdrawal। भैया 9th में या 8th में में से एक आंसर होता। 8 में देता तो मैं 8 में सेलेक्ट करता, 8 में नहीं दिया हुआ तो मैं 9th में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आंसर इज 9th में। बोलो, नहीं उस दिन नहीं भेजना, उस दिन तक का जितना स्टॉक है उसकी डिटेल भेजनी है। Furnish a statement containing details of stock held in
फिनिश गुड्स ऑन विड्रॉवल ऑफ कंपोजिशन स्कीम बाय, तो आपका कितना कौन से दिन का स्टॉक का डिटेल मुझे भेजना है, तो आंसर इज 9th में, तो आपको डिटेल भेजना है। हाँ तब 8 आ जाता। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विट्ठल एंड कंपनी शैल इशू द इनवॉइस, तो भैया देखो सेल और रिटर्न बेसिस का माल आपने भेजा था 10 जून को, तो 10 जून से 6 महीना हमारे, जून से दिसंबर 6 महीना, 10 दिसंबर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय विट्ठल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, बताते हैं। तो भैया आपको इस 12,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल 9,000 का आईटीसी मिल जाएगा, जीएसटी परचेज ऑन कंप्यूटर नहीं मिलेगा 9,000, तो आंसर इज और ये 10,000 का आईटीसी मिल जाएगा, तो आपका आंसर मेरे हो रहा है 19,000, और 19,000 में से आपका ये आईटीसी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, तो ये तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो रहा है 19,000। आप बोलो आपका आंसर क्या जा रहा है। दो जीएसटी पेड 19,000 का तो आईटीसी मिलेगा नहीं, परचेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इसमें आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लियो। 2 व्हीलर का आपको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि क्यूबिक कैपेसिटी 25 सीसी तक है, पर्सनल यूज का आईटीसी मिलेगा नहीं, तो 9,000 का ये आईटीसी ले लो, और ये जो पुराना आईटीसी आपने रिवर्ट किया था वापस इसको क्रेडिट ले लो, तो 10,000 ये और 9,000 ये 19,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। 10,000 ये, 9,000 ये आपको आईटीसी मिल जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय विट्ठल एंड कंपनी फ्रॉम एसोसिएट इंटरप्राइज 53.4 छूटिए क्या, कंप्यूट द आईटीसी टू बी रिवर्ट, हाँ तो ये आईटीसी रिवर्ट करना है ना, बताया ना 15,000, तो ये सबसे आसान था इसमें 15,000। 53.4 था सी, एंड 53.5 टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड, तो भैया एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से जब आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस से कोई मतलब नहीं है। was entered in the books of account on 10th October and payment was made on 30th September, whichever is earlier, तो आंसर इज 30th September। जितना तुम ड्रामा कर रहा था उतना तो एकदम नहीं, बहुत आसान था ये। अनुभव की कमी है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता है कि पहले बार पूरा पेपर पढ़ना, पेपर पढ़ते समय दिमाग में बैठ रहा है ये पूछेगा ये पूछेगा ये पूछेगा। आई डोंट सजेस्ट कि आप पूरा ट्यूशन पढ़े बिना इधर उधर नाचो, पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ, लेकिन पूरा सम पढ़ना पड़ेगा। रेदर देन मेकिंग शॉर्टकट, आप स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। Messrs Safe Bank Limited, a small finance bank, was incorporated in April this year. The bank got registration under GST immediately on its incorporation as a banking company. कॉफी पीने का मन हो रहा है, नहीं मेरा हाल ही एक कॉफी पीने का मन हो रहा है। Messrs Safe Bank Limited, a small finance bank, was incorporated in April this year. The bank got registration under GST immediately on its incorporation as a banking company. Messrs Safe Bank Limited received software support service from its head office located in United Kingdom. पांडे जी कुछ भी पिला दीजिए, कॉफी जूस कुछ भी, हाँ कॉफी जूस कुछ भी वो, हाँ तो यहाँ पे द मिलते जुलते वर्ड को आजू बाजू वाले वर्ड से इंटरप्रेट करना चाहिए। कॉफी जूस कुछ भी, तो कुछ भी में मतलब कॉफी या जूस जैसा ही कुछ आएगा। फिर मैंने बोल दिया। एंड इंटरप्रिटेशन, Messrs Safe Bank Limited, a small finance bank, was incorporated in April this year. The bank याद पढ़ चुका हूँ यार। Messrs Safe Bank Limited received software service from its head office located in United Kingdom. ये तो import है। No amount was charged by head office for the said service. कोई फर्क नहीं पड़ता, GST देना पड़ेगा। Value of the said service was 4,10,000, ठीक है। The Messrs Safe Bank Limited provided one high-end laptop worth ₹50,000 to its managing director as gift, ठीक है, exempt है। Initially, the bank opened 125 branches across India,
covering various states. In order to secure business, the bank appointed Quick Loan Providers LLP, a direct selling agent on pan India basis. The bank was in need of service of recovery agent for various retail and personal loan granted by its branches. For this purpose, the bank appointed Fast Recovery Service Private Limited, a recovery agent on pan India basis. Messrs. Bank Limited provided the following details for the month of interest received on term loan, not taxable. Interest received on credit card transactions, taxable. I doubt, but taxable. Taxable. Huh? Interest received on fixed deposit held with SBI, non-taxable. Commission received on letter of credit, taxable. Documentation charge, taxable. Sale of foreign exchange to authorized dealer of Bank of Rajasthan. तो बैंक को सर्विस दे या बैंक ऑथराइज मनी चेंजर सर्विस तो दे, एग्जेम्प्टेड. भैया तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा टैक्सेबल है. तो सर्विस रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ लोन, एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट रिसीव ऑन क्रेडिट कार्ड, टैक्सेबल. इंटरेस्ट रिसीव एग्जेम्प्ट. कमीशन टैक्सेबल. डॉक्यूमेंट चार्ज टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट. तो सब मिला के टैक्सेबिलिटी आ रही 6, 20, 9, 20 और 10, 45. 1045. Messrs. SIP Bank Limited had opted for optional method under section 17(4) of CGST for claiming input tax credit in respect of its operation for the month of May. The relevant details are as under: GST paid on eligible input service, ITC मिलेगा. Capital goods मिलेगा. GST paid on items whose credit is blocked, नहीं मिलेगा. GST paid on service availed from within the same bank having distinct registration, इसका ITC पूरा मिलेगा. All the amount given above are exclusive of taxes. ठीक है भैया. तो 12, 6, 18 का 50% कर दिया, मतलब यहाँ पे हो गया 9 लाख और 2 लाख 11 लाख. आगे बढ़ते जाए. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स. पूछो. एक आर्ट के बारे में मैं तुम्हें डे 1 से बता रहा हूं. ठीक है. स्टूडेंट्स टीचर को कोच मानता ही नहीं है. वो कोचिंग मानेगा तब तो काम होगा. वो खाली टीचर को टीचर मानता, बस आप सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए. सब्जेक्ट पढ़ाने से यदि पास होते तो सारे स्टूडेंट पास होते, क्योंकि सारे टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. उस कोचिंग टेक्निक को जो बच्चा अडॉप्ट कर लेता है वो पास हो जाता है. जो कोचिंग टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करता उस बच्चे का बंटाधार हो जाता है. मैं एक आर्ट के ऊपर तुम्हें कॉन्स्टेंट वर्कआउट करने बोल रहा हूँ कि दोबारा नहीं पढ़ेंगे. अब यदि सम को जो बच्चे एक बार में पढ़ लिए ना, उनका तो बेड़ा पार. और जो दोबारा पढ़ेगा ना, वो दोबारा भी नहीं पढ़ पाएगा. फिर उसको तिबारा पढ़ना पड़ेगा, तिबारा भी नहीं पढ़ पाएगा. फिर बहुत टाइम वेस्ट करके कैसे करके सम कैरी करेगा. एक बार में यदि सम रिटेन दिमाग में आ गया तो परफेक्ट है. एक मूवी तुमको बार बार बोलूंगा, जरूर देख लेना टाइम मिलते ही. कौन सा? एयरलिफ्ट. रनवे 34. वही तो, एयरलिफ्ट नहीं, रनवे 34. 30 सेकेंड में पढ़ा, हो जाता. याद है दोस्तों सब. पूछो क्या पूछना है. वो सुपर ह्यूमन पावर अपने में नहीं है, परंतु वो सुपर ह्यूमन पावर का कुछ पोर्शन अपने में डेवलप किया जा सकता है. प्रोवाइडेड एक साइको बनाते हैं हम लोग कि हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे. तुम्हारा करियर अभी एजुकेशन का अच्छा खासा है. तुम ये अभी से डेवलप करोगे ना तो 2 साल के अंदर ये चीज पक्का वाला रनवे 34 जैसा डेवलप हो जाए. परंतु इस बात को तुम्हें दिमाग में इंजेक्ट करना पड़ेगा. एक बार पढ़ो और तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे जीवन में कितना काम आएगा, कितना काम आएगा. एक बार पढ़ो. भले बाद में तुम बिजनेस करो या जॉब करो, इतना काम आएगा. बस एक बार पढ़ो. अपने दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शंस, एक बार पढ़ूंगा रिटेन कर, एक बार पढ़ूंगा रिटेन कर. दोबारा पढ़ना नहीं बाबू. दोबारा पढ़े तो अपने दिमाग को थोड़ा सा बोले क्या कर रहा है, एक बार में क्यों नहीं पढ़ा. पूरे डेटा रिटेन करने. हाँ, डेटा रेफर करने जाऊंगा मैं पीछे, लेकिन मेरे तो दिमाग में सम तो पूरा मोटा मोटी क्लियर है कि क्या पूछना चाह रहा है. और मोटा मोटी अभी मैंने MCQ इसका पढ़ा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी बता सकता हूँ क्या क्या पूछेगा. RCM वाला पूछेगा, ITC कितना मिलेगा पूछेगा, कितना पोर्शन टैक्सेबल है पूछेगा. लॉलीपॉप सम्स. ये सब उन्हीं बच्चों को टफ लगता है जो दोबारा पढ़ रहे हैं. दोबारा पढ़ेगा तो डेफिनेटली टफ है, बहुत टफ है. Determine the value deemed supply in the case of study given. Determine the value of deemed supply in the case study in the given above. लो भैया, निकाला तो था यहाँ पे. हाँ, deemed supply आपने कुछ दिया. आपने
डीम्ड सप्लाई 4,10,000 तो दिया ना। तो भैया ये जो आपने इंटर ब्रांचेस में जो सर्विस लिया है ना, ये डीम्ड टू बी सप्लाई है 71C वाला। और ये जो आपने लैपटॉप दिया ना, ये डीम्ड टू बी सप्लाई नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा था 410 की 460, तो हमने बोला 410। दो 410 पूछा, 460 पूछा, डेटा ही बता रही थी क्या पूछ रहा है। तो भैया आंसर 410 मुन्ना, 50,000 थोड़ी माना जाएगा, हटा इसको। In respect of service availed by Messrs Safe Bank Limited, the bank shall pay the tax under reverse charge of which the following service, बता देते हैं। LLP वाला तो नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल होता है तो एग्जम्प्ट होता है। तो हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यदि इंडिविजुअल है तो RCM में जाता है, अदरवाइज नहीं। एग्जम्प्ट तो तब होता है जब रूरल ब्रांच लिए होता है, तो सब अर्बन ब्रांचेस है। तो सर्विस अवेल फ्रॉम फास्ट रिकवरी, ये तो RCM में जाएगा ही जाएगा। RCM हमेशा, रिकवरी एजेंट इज ऑलवेज RCM, बोथ एन बी ना, नन ऑफ द सर्विस, नहीं फालतू बात। बी इज फॉल इन द RCM, रिकवरी एजेंट इज अंडर RCM। हाँ 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 शायद। सर्विस पता ही नहीं है कौन है। अच्छा ठीक है छोड़ना, लेकिन अपने सम पूरा पढ़ेंगे, इस बात को ओवररूल मत करो आप, शॉर्टकट नहीं होता, सम पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई प्रोवाइडेड बाय मैसेज सेफ बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे। 15 लाख, अच्छा एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो भैया मैंने जिन जिन को काटा वो बताओ। 25 और 15 60, 10 75, 25 और 15 60 जोड़ो भैया। 15 35 35 40 50 51 35 है क्या ऑप्शंस? 51 35। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये तो बकवास है यार, ये एक ही सम पे 2 नंबर दे दिया, 6 20 9 20 और 10 45। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC दैट कैन बी अवेल्ड, अभी बताते हैं ना, ये तो निकाला हुआ है, 9 2 11 है। सुभाष हो गया खत्म, 5 नंबर के लिए ज्यादा, मतलब कम समय में हो गया ये। 5 MCQ बनाने में इससे ज्यादा टाइम लगता मेरे को, ठीक है। सुभाष एंड कंपनी, अच्छा तुम तो 54 को 8 सम मान रहे थे, इसलिए तुम्हें लग रहा था कितना टॉर्चर है। 54 में तो 5 सम हो गए ना, मतलब पेपर 85 से ज्यादा का था। Subhas and company, a registered person, supplies taxable goods to unregistered person. Oh, it need not issue tax invoice suit for the goods supplied on 16th April if the value of goods is and recipient does not require such invoice. 200 does not exceed 200. 200 नहीं 200 या उससे ज्यादा होने पे देना पड़ता है, लेकिन मैं तो एक्सीड ही नहीं कर रहा है 200 को। Does not exceed 200, you don't need to issue invoice. ले जाऊं क्या तुम्हें मैट में दिखा दूं, मेरे को 2 मिनट रहा है, बोलो। इसको क्या कंफ्यूजन में तो एकदम क्लियर है, मैं तो एकदम क्लियर रहता है सब बात। डेढ़ सौ नहीं, तुम तो बोलना चाह रहे डज नॉट एक्सीड 150, तो फिर उसको इन्वॉइस देना नहीं है, मतलब इसका मतलब तुम ये बोलना चाह रहे 150 के ऊपर होते ही इन्वॉइस देना पड़ेगा। The registered person may not issue, नहीं bill of supply आ गया, where the value of supply or service does not exceed 200. दो 200 हुआ तो हम लोग इन्वॉइस नहीं देंगे, 200 से ज्यादा होते ही इन्वॉइस देंगे। आंसर एब्सोल्यूट था मेरे हिसाब से, सबका राइट हुआ। बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स पेबल, one answer only. In case of taxable supply of service by a non-banking financial company
Invoice shall be issued within a period of 45 days. ये सब तो राइट हो रहा होगा. Where the goods being sent or taken on approval for sale or return basis, then 6 months from date of removal or before at the time of supply. C, A or B, whichever is earlier. Invoice shall be prepared which of the following shall be discharged first while discharging the liability? All dues relating to previous time, all dues, ऑप्शन क्या है? नो सच कंडीशन इज माय. एंड आंसर इज ए. मतलब समी रॉन्ग है, क्या बोलूं, डिजाइनिंग रॉन्ग है. ऑल ड्यूज वर्ड रॉन्ग है, सेल्फ असेस ड्यूज होना चाहिए. ऑल ड्यूज चाहिए बोला आपने. ठीक है, इन चार में बेटर आंसर है ए. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड, देख भाई कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रोल प्ले करता है रेदर देन कितना पढ़ के आया है. तो बाबू यदि तुम 3 घंटे तक तेरे शरीर में कैपेबिलिटी नहीं है तो डू समथिंग, वो करना पड़ेगा. ब्रेक ले ले भले तुम, लेकिन 50% बच्चे अपने पुअर कंसंट्रेशन या पुअर फिजिकल फिटनेस से कांड फेल होते हैं और वो इस बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. मतलब फिजिकल फिटनेस मतलब ये नहीं कि तुम कितना डोले सोले उठा सकता है, मतलब तुम कितना जल्दी टायर्ड हो जाता है. टायर्ड होते मतलब तुम्हारा फिजिकल स्टैंड डाउटफुल है. हमारा ब्रेक चल रहा. जवाब भी नहीं दे रहा है कि क्या इश्यू है यार. ये चैट बॉक्स ऑप्शन रहता है यार. ब्रेक ओवर करते लीजिए. मुझे बहुत दुख हुआ यार, तुम लोग कुछ बोला भी नहीं मेरे को. इन लोग को स्क्रीन नजर नहीं आ रहा था, ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे. ये बदमाश. आई होप ऑल क्लियर यार. टू वे कम्युनिकेशन क्यों नहीं रखते यार. अभी स्क्रीन नजर आ रहा होगा. आई होप बेटर हो गया होगा पहले से. तो रिप्लाई नहीं है. यस फाइन. आओ ब्रेक ओवर. हाँ टॉनिक दे दिए उसके बीच में,
61 चला है। अरे ये तो आपने उसी का हिसाब से 38 आओ आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी वन में आते। During the month of May, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 and charged GST at the rate 18%. However, owing to some defect in the goods, Y Limited returned the goods by issuing debit note. Wow. Returned the goods by issuing debit note of rupees 40,000 in the same month. Z Limited recorded the return of goods by issuing a credit note of 40,000 plus GST in the same month. In this situation, GST liability of Z Limited for the month of May will be during the month of May, Z Limited sold goods to Y Limited 255 पे कैलसी चलाना पड़ेगा भाई। 255 पे कैलसी चलाने दे बार 45,900. Y Limited returned the goods by issuing debit note. In the same month, Z Limited recorded the return of goods by issuing a credit of 40,000. तो फाइनली 255 माइनस 40,000 इंटू 18%, 38,700. तुम जो बोला वही लिखा भैया, तुम्हारे बोलने पे तुम लोग लिख पाया. Which of the following activities shall be treated neither as supply of goods nor a supply of service? ये बड़ा आसान है भैया. सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर भैया 4 तो पक्का है. ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसीज भैया 3 तो पक्का है. टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये नहीं है. परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वे इनपुट. तो भैया 3 and 4 जहां हो वहां पे हाथ रख दीजिए. सब साथ में हो. Which of the following activities is a supply of service? बताओ. Transfer of right on goods without transfer of title in goods. Transfer of title, transfer of title, which is and answer is 1. Which of the following service received in the course of furtherance of business without consideration amount to supply? आसान है. Import of service by a person in India from his son well settled in USA. Import of service by a person in India from his brother well settled in Germany. Import of service by a person in India from his brother wholly dependent on such person in India in France. Import of service by a person in India from his daughter wholly dependent on such person in India in Russia. तो भैया 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है. 1, 3, 4. Import of service by a person in India from his son. तो son is a related persons, फॉल कर दिया. 2 related persons नहीं है इसलिए ये डीम्ड सप्लाई नहीं है. 3 ब्रदर है लेकिन डिपेंडेंट है तो ये रिलेटेड पर्सन्स है. और 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर. डॉटर तो रिलेटेड पर्सन है ही. ब्रदर रिलेटेड पर्सन कहाँ है? 2 वाला ब्रदर रिलेटेड पर्सन कहाँ है? 3 वाला ब्रदर रिलेटेड पर्सन है. तो 1, 3 and 4 आंसर इज ए. 64 का आंसर हुआ ए. सिक्सटी फोर का आंसर हुआ ए. आओ 65 में चले. Assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration, state which of the following is not a supply. Wow. Renting of commercial office complex है. An employee agreeing to not to work for the competitive business after leaving the current employment. ये तो नहीं है. Repairing of mobile phone ये तो है. Provision of service by an employee to the employer in the course of employment. हाँ. The due date of filing of return is 20th of the next month, 18th of the month succeeding the quarter, within 3 months of the date of cancellation of date of order of cancellation, whichever is later, 31st December of next year. Final return. Oh, क्या इतना पूछ रहे थे? Discount given after the supply has been effected is deducted from the value of taxable supply if
Such discount is given as per the agreement. Such discount is linked to the invoice ITC 3. Which of the following statement, ये सब डायरेक्ट समय एकदम डायरेक्ट, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ. यदि ये तुमसे नहीं हुआ इसका मतलब तुमने कॉन्सेंट्रेशन लूज किया है, टॉपिक में कोई क्लू नहीं है इसमें, सब सिंपल है. Which of the following statement is true? बताते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन. झूठा. ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन. झूठा. ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन if they are wholly dependent. सच्चा. Grandparents are considered as related person to their grandsons if they are not dependent. ये क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स और जीएसटी जिस दिन एक साथ पढ़ते जाएगा ना उस दिन ये बहुत टफ लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटेड पर्सन ज्यादा में नहीं है. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ₹5 लाख फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. एडवांस रिसीव से मतलब नहीं है, इनवॉइस रिसीव से मतलब है, गुड्स रिमूव से मतलब नहीं है. हो गया. विच इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 15 अप्रैल. एडवांस से मतलब नहीं था, इनवॉइस डेट पहले था. शाम लिमिटेड इज रिसीविंग लीगल सर्विस फ्रॉम अ लॉयर Mr. Dhyan. The aggregate turnover of SAM in the preceding financial year is 40 lakh. The information regarding the date of payment invoice etc. as follows. Invoice issued by Mr. Dhyan 15 April. Payment received by Mr. Dhyan. भैया पहले बताओ 40 लाख तो एक्सीड है कि 40 लाख तक है? The aggregate turnover of SAM Limited in the preceding financial year is 40 lakh. SAM Limited is receiving legal service from a lawyer. नहीं, SAM Limited is receiving legal service from a lawyer. गुड्स कर रहा है ना, तो उसने बोला तो लिमिटेड है, गुड्स मान नहीं दिया. और क्या देखते क्या बोल रहा है. इनवॉइस रिसीव्ड बाय मिस्टर ज्ञान ऑन 15 अप्रैल. पेमेंट रिसीव ज्ञान. डेट ऑफ पेमेंट इंटर श्याम. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? दूर. तो भैया सम रॉन्ग है, पुराना जमाने का समय, इसको आप 40 या 50 कर लो. क्योंकि 40 लाख तक का टर्नओवर है और श्याम लिमिटेड की सप्लायर ऑफ गुड्स है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा. अब मैं बता देता हूँ, आरसीएम है तो आरसीएम में इनवॉइस इश्यूड से मतलब नहीं है, वहां से 60 दिन जाना पड़ेगा. पेमेंट पहले आ गया 5 में और डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई मतलब नहीं है. पेमेंट रिसीव्ड ऑन 5 में एंड पेमेंट एंटर्ड ऑन द 1 मई. मतलब 1 में, आंसर 1 में. क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट माना जाता है जिस दिन आपके पेमेंट बैंक में आया या फिर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया, 1 में. फिर कहानी आ रही क्या? अब लाइन से कहानियां ही है. हाँ यार तो चाप है. फिर तो 100 नंबर का पेपर चिटिंग कर लिया, मतलब ये तो बहुत लंबा हो गया, होना ही नहीं है. ये बहुत लंबा हो गया पेपर. 15 5 75 तो यही हो गया. नहीं अब तो जाती है. तो आज क्लास अपने यहीं पे ओवर करते हैं, पार्ट में करते हैं. हमने कितना हैंडल किया? 75 ना. सत्तर ना. तो मेरे हिसाब से तुम लोग ये टाइम लेके 71 से 85 जो तुमने किया ही नहीं है, लिटरली तुमने किया ही नहीं है. तो यदि 70 से 85 तक किसने नहीं किया तो पहले वो कर लो, फिर अपने एक दिन और रख के 1.5 घंटे और लेंगे, सबको सल्टा देंगे. आज चाप देना सही नहीं.